लेक्चर आपके मैंने जो कंटिन्यूटी के मैंने वो वीडियो बनाए थे. ओके, वॉच इन माई प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखा होगा, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मेरे दिए हुए. सो सी व्हाट इज कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी मैंने फर्स्ट वीडियो में देखा था. कंटिन्यूटी इज डिपेंड ऑन लिमिट्स, पता था ना आपने. सो यू नो एवरीवन, कंटिन्यूटी मीन्स व्हाट, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हेन दिस एट पॉइंट लिमिट, जो कुछ तो पॉइंट दिया होगा लिमिट का, वो एग्जिस्ट होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए. सो व्हाट यू से, दिस इज अ कंटिन्यूअस. और जब नहीं होगा उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस. ओके, एंड देन लास्ट सेकेंड वीडियो विल डिस्कस व्हाट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बट वी रीडिफाइन मीन्स उसे हम कहते हैं रिमेबल डिसकंटिन्यूटी. एग्जाम्पल देखे थे. समटाइम्स हमने ये भी देखा था कि जिसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है बट कुछ तो रियल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है. जैसे कि सी, वैसे एग्जांपल दिया मैंने, आर यू श्योर माय गॉड, गुड. सो इट्स गिव्स व्हाट, फाइंड के इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0. फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज गिव्स एक्स इंटू ई रेज टू एक्स प्लस tan x डिवाइड sin 3x व्हेन x is not equal to 0, and then x is equal to 0, then what is gives k. Okay, and then you have what we have, these are the given. Everybody is know what the continuity is, condition. function exist होना चाहिए. Okay, उसका limit exist होना चाहिए. RHS and LHS, those are exist and equal. These three conditions is existing, satisfy, then what you say, this is function is continuous. Good, exactly. So f of 0 कितना है, k, and then we write limit f of x tends to 0 is equal to f of 0. या मैंने थोड़ा RHS को LHS में लिख दिया, LHS को RHS को, मतलब इंटरचेंज. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. गुड. सो f of 0 की वैल्यू कितनी है, what is gives the f of 0, k. Good. and limit f of x tends to what the point, 0. so we will prove its value. so we have what we have, limit x tends to 0, f of x कितना है, x into e raised to x plus tan x upon sin 3x. and then we remember what we remember, this most important example, sorry, this important formula, limit x tends to 0 sin x upon x should be 1. या limit theta tends to 0 is equal to sin theta upon theta, it should be 1. या sin k theta upon theta is equal to k. या limit x tends to 0 tan x upon x should be 1. You remember this limit standard formula? Good. So we observing numerator denominator is x. क्या चाहिए numerator denominator में, x होना चाहिए. कहाँ पे, डिवाइड में, मतलब इस फॉर्म में, as like limit x tends to 0 tan x upon x, it should be what, 1 when denominator is existing in x. so we think and then we define न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिवाइड x बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. डिवाइड x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज x. देखो कैसे लिखेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x. देन वी गेट, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट्स डिवाइडिंग बाय x. So we define x into e raised to x plus tan x, whole denominator is x. So what we've done, x cancel and then separate tan x upon x. Are you getting? Good. So this right hand side is, left hand side is, f of 0 is k, as it is k is nothing but limit x tends to 0 in bracket e raised to x plus tan x upon x. Are you getting everyone? Means as like x into e raised to x plus tan x upon x. so x is separating, then what, e raised to x is remaining and tan x upon x is remaining. Are you getting this concept? Good. so we will define and sin 3x upon also x. okay, then later we operating limiting inside the bracket. so what happened, numerator and denominator, e raised to x is another function and tan x upon x is another function. then we operate algebraic limit. okay, so limit x tends to 0 e raised to x plus sign is there plus
limit x tends to 0 tan x upon x. Then similar, limit x tends to 0 sin 3x upon 3x into 3 means what? This is nothing but to this form, limit theta tends to 0 sin theta upon theta should be 1 and any scalar मतलब क्या है यहाँ पे denominator is x coefficient is 3, so we define 3 is multiply also and dividing also. Are you getting? Good. And then you have e raised to 0, indices root e raised to 0 is 1, so we write, and limit x tends to 0 tan x upon x should be is what? Standard formula is 1, and limit x tends to 0 sin 3x upon 3x should be 1 into 3, that like 1 upon 3, and then 1 plus 1 2, 2 upon 1 2, 2 into 1/3, then what do we write? 2 upon 3, and then left hand side is what? K, that is the k's value is what? 2 by 3 means पता चला the given function is continuous. Then we find out a, then we find out b, then we find out k, अल्फा बीटा वेरियस फॉर्म, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस दिया होगा और हमें उसमें कुछ तो अलजेब्रिक मतलब के पूछा होगा, समटाइम्स ट्वाइस ए बी प्लस बी पूछा होगा, या 5ab प्लस 3b, या थीटा पाई, एनी नंबर्स, एनी रियल नंबर्स विल आस्क. ओके, सो इस टाइप्स के हम अभी यहाँ पे एक्सरसाइज के सम देखने वाले. ये सॉल्व सम था और वेरियस एग्जाम्पल्स इन अवर स्टेट बोर्ड एग्जाम्पल्स, स्टेट लेवल एंड एनसीईआरटी. एकदम इजी है कंटिन्यूटी, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखने वाले, बहुत सारे अलग अलग अलग, मतलब जैसे फंक्शन अलग बदला तो उसका क्राइटेरिया अलग सा होगा, स्ट्रैटेजी बदल जाएगी. आर यू रेडी? सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी डिस्कस. ओके, सो वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स वी विल डिस्कस वन बाय वन, एंड एनी प्रॉब्लम्स एंड एनी डाउट्स देन कमेंट्स मी या व्हाट्सएप मी. टीचर आर्टिकुलेटेड कंटिन्यूटी. सो अगेन आई टेल यू इन सिंपल लैंग्वेज, मतलब क्या कंटिन्यूटी? आपको फंक्शन पता होना चाहिए, फंक्शन के बाद लिमिट पता होना चाहिए, एंड देन लेटर वी शुड बी गेट टू कंटिन्यूटी. इट इज द चेन ऑफ कैलकुलस. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 8.1 इन पेज नंबर 172. ओके, सो वेरी सिंपल एग्जांपल्स वी विल डिस्कस. इज द इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन फर्स्ट पैटर्न. एग्जामाइन एक्सरसाइज 8.1. Examine the continuity of, in first question f of x is gives x cube plus 2x square minus x minus 2 at x is equal to minus 2. means what we will find out? the function is continuous है या नहीं है. अभी हमने क्या देखा था पहले? continuous था, and then we'll find the k value. But in this example, what is given? What the instruction is given? Examine the continuity means what? The given function is defined, and then we identify this is continuous function. Here this is the discontinuous at that point. Okay, so I will get it very simple. You learn in limit. Okay, so how to define? See, f of x is what? X cube plus 2x square minus x minus 2, and 8x is equal to what? Minus 2. So what can I do? So first of all, functional value. हम क्या निकालेंगे अभी? फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे. फंक्शनल वैल्यू कितनी है? मतलब -2 डाला मैंने दिस फंक्शन. सो क्या हुआ? -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर. मतलब ये हर तरह से हर टाइप से हम कर सकते हैं. ओके, इट्स वेरी सिंपल. सो माइनस मतलब x इज रिप्लेस बाय -2, and then -2 cube is plus 2 in bracket -2 square, then minus in bracket -2, and then we have -2 cube is what? -8. Minus square is -2 square is 4, and 4 2s are +8, and then -2 and minus plus 2 and -2. What the answer? It's very simple. It's 0. Means f of -2 is value is 0, and then we have what is the continuities? As like f of -2 is nothing but to limit x tends to 0 f of x, limit x tends to -2 means functional value and limit value, those are exist and equal, then we say that this is the continuous. Yeah, some students is madam it's very long process, some students is directly put limit f of x tends to -2. Okay, मतलब f of x will put limit, and then we should get to answer.
Okay, but we can't get it now, continuous and discontinuous, so easily this is the proper way. Are you ready? So very simple. Then f of minus 2 answer is what? 0. And this side also answer is 0. Then we say what? This is the continuous function at x is equal to minus 2. Are you getting me? Good. So we define limit x tends to minus 2. What is the function? Function is gives x cube plus 2x square minus x minus 2. Okay, and you have what we have? Which type function? This is simple polynomial function. What? This is the simple polynomial function, and direct method is given in limit. So we put directly limit. मतलब जब स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तो हम डायरेक्टली वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर देते हैं. समझ में आ गया सबको? ओके, सो मतलब इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी या इट्स अलजेब्रिक या इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स है या लॉगरिथम का कोई फॉर्म है या कोई तो लिमिट के स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करें. नथिंग. इट्स सिंपल फंक्शन, सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन. ओके, इसलिए मैंने बोला फंक्शंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्लेइंग इन सेट थ्योरी. एंड देन you learn in a set theory relation and function, then later you will get it limit, and then later you will get it continuity, differentiation, applications of derivative, integration, definite integration, definite integration, differential equation. These are the whole calculus. This is the most important for JEE या नाटा या BR. दो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, इसमें कैलकुलस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज देयर. ओके, so आई बात समझ में? So let's start. So very simple. So x value what will put? minus 2. Then what? You know, minus 2 cube is minus 8. Again this process as like 2 into minus 2 square minus in bracket minus 2 and then you have minus 8 and then plus 8 plus 2 minus 2 and then what the answer? 0. Then 0 is equal to 0. That will say limit x tends to minus 2 f of x is equal to f of minus 2. Therefore this f of x is, this function f of x is continuous. F of x is continuous at x is equal to minus 2. Are you getting? And then you secure to 2 marks and 3 marks in state level, and CAT master state board you secure also 2 marks. आएगा समझ में? किसी को कोई डाउट? गुड. सो गो अहेड, आगे जाते हैं अभी हम. सो वेरी सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है इन दिस एक्सरसाइज, एंड मोर देन स्मॉल एग्जांपल्स आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले इन आवर एग्जाम, इन बोर्ड एग्जाम. मोर देन आस्क टू solve example also, exercise example also. Okay, so very simple. Next example also we discuss. F of x is nothing but x square minus 9 divide x minus 3, and x is not equal to 3 and x is equal to 3, then what the answer is 8. Okay, it's very simple. Are you ready? दिख रहा है सबको? Very good. So this function is continuous function. Yes or no? We will check by condition. F of 3 मतलब functional value is given already 8. Okay, is given. So what we check? Limit x tends to 3. कितना है at point 3 है. Limit x tends to 3. F of x is equal to f of 3. मतलब आप ऐसे लिखो, f of 3 is nothing but to limit x tends to 3 f of x. Doesn't matter RHS या LHS कोई भी चलेगा. Okay, so no issue. And then you have what we have, function. कितना है function? x square minus 9 upon x minus 3. X square minus 9 upon x minus 3, and right hand side is what the answer? 8. Then we check it as like, so what is this function? Is what? This function is algebraic function. It's not a standard function. And then you have, what do you have? X square minus y square is nothing but 2, x minus y and x plus y.
ये बचपन से सीखते आ रहे हैं हम एकदम। 7th स्टैंडर्ड में आपने कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप दी होगी, 8th स्टैंडर्ड में दी होगी, इसलिए मैथ एंड मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन यू हैव दिस लॉजिक x square minus y square is nothing but 2 x minus y and x plus y. You otherwise x square minus 1 is nothing but what? X plus 1 and x minus 1. ये दिमाग में होना चाहिए। कब आएगा ये? प्रैक्टिस। इसलिए मैं बोलती हूँ हर वक्त प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। वैसे ही प्रैक्टिस करोगे तभी मैथ्स आपका एकदम बेस्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। मतलब आप कुछ मतलब टेंशन नहीं होगा। जो हम बोलते हैं ना, हाँ मैथ्स बहुत डेंजर है, कुछ नहीं। एज लाइक गेम, मतलब गेम में कैसे रहता है स्ट्रेटेजी, इतने ओवर में इतना रन बनाया, सो टारगेट हमेशा अपने सामने होना चाहिए एंड देन प्ले। ओके, प्रॉब्लम तो आते ही हो गए बट विल बीट। इस पे हम क्या कर सकते हैं? मत कर सकते हैं। ओके, ये तो फंडा है लाइफ का। सो लेट्स सी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, देन व्हाट यू राइट इन न्यूमेरेटर? x minus 3 and x plus 3, and denominator also is what? As it is x minus 3. सबको बताया ना मैं क्या बोल रही हूँ? गुड। सो इसके मैंने फैक्टर बनाए x स्क्वायर माइनस 9 के, तो कितने फैक्टर? x माइनस 3, x प्लस 3 एंड डिनोमिनेटर x माइनस 3। ऐसे हमने एग्जाम्पल्स बहुत देखे। सो न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉमन फैक्टर एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फंक्शन। एंड देन लिमिट x टेंड्स टू 3, x plus 3 is equal to 8 and then we'll put x is nothing but to 3. 3 plus 3 कितना हुआ भाई? कितना हुआ? 6. 6 is equal to 8? No, 6 is not equal to 8. Why? 6 is another number and 8 is another number. Those limits are मतलब दोनों वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है but it's not equal. Then what are you saying? This f of x is discontinuous. f of x is discontinuous and x is equal to कितना था? 3. This is the continuity and this is the discontinuity. मतलब लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट और इक्वल हो तभी हम बोल सकते हैं कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल, वेरियस फॉर्म इज देयर। आई बात समझ में आपकी? गुड। Then later in second part, examine whether the function is continuous at that point against them. मतलब अभी सेकेंड फॉर्म में सेकेंड एग्जांपल हम देखने वाले हैं सेकेंड टाइप्स के। इसमें क्या दिया है कि कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, द गिवन फंक्शन इज एग्जामाइन करो, मतलब क्या? वेरीफाई करके देखो द गिवन फंक्शन इज continuous. So very simple example in second. In 1, f of x is gives x cube minus 2x plus 1 and x is less than or equal to 2 and second functional value second function also is gives 3x minus 2 if x is greater than 2 and x is equal to 2. It's very simple instruction. One times I read. Examine whether the function is continuous. Examine whether the function is continuous at that indicates point. दिख रहा है सबको? मैंने अभी ब्लू मार्कर यूज किया। Are you get it? Are you see everyone? Yes or no? Good. F of x is what? X cube minus 2x plus 1. X cube minus 2x plus 1. X is less than or equal to 2 and x is greater than 2, then what the function? 3x minus 2. मतलब जैसे मैंने बोला कंटिन्यूटी के तीन कंडीशन, कौन सी कंटिन्यूटी की तीन कंडीशन बोली? फंक्शनल वैल्यू, ओके, फंक्शनल वैल्यू इज एग्जिस्ट, ओके, सेकेंड टाइम लिमिट also exists, and third one, limit x tends to a plus, f of x is equal to limit x tends to minus a f of x, means what? This is called RHS limit, and this is called
LHS लिमिट, मतलब दोनों की वैल्यू RHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोज फंक्शन limit value functional, not a functional, limit value, those are exist and equal, then three condition is satisfied, then what do you say, this function is continuous function. समझ में आ गया? So we will solve. Okay, so लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड पहले हम डिफाइन कर लेंगे. अभी आपने ओपन इंटरवल पढ़ा ही है सेट में, पढ़ा है नहीं? पढ़ा है मैंने. ओके, सो एवरीवन रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. So first of all, for x less than or equal to 2, x less than or equal to 2 is given, that means left. So we write limit x tends to 2 minus less than, x less than or equal to 2 means what? This is a left hand limit. Then what do you say? Limit x tends to, मतलब चार्ज होना चाहिए, -2 ले लिखेंगे हम, 2 raised to क्या है, -4 f of x, and then later we'll calculate limit x tends to 2 minus in bracket क्या है फंक्शनल उनका फंक्शन 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 1. ओके, लिमिट f of x टेंस टू कितना है 2, बट इज देयर लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर x लेस देन और इक्वल टू 2 मीन्स 2 इज द ग्रेटर देन बाय x. x से क्या बड़ा है, इसलिए व्हाट इज डिफाइंड, दिस इज द लेस देन लिमिट, लिमिट f of x टेंस टू 2 minus f of x, and then limit x tends to 2 minus, and then what is the function in less than, लेफ्ट हैंड का फंक्शन कितना था, x क्यूब माइनस 2x प्लस 1, and so we write x is replaced by, this is a standard function. यहाँ पे तो कोई अल्जेब्रिक नहीं है, डायरेक्ट मेथड हम अप्लाई करेंगे लिमिट की, मतलब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 2. so what do you write, 2 cube 2 into 2 plus 1, and you know 2 cube is what, 8, 2 into 2 4 plus 1, and then algebraic calculation 8 minus 4 is 4, 4 plus 1 कितना 5. समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन इन लेफ्ट हैंड लिमिट. आप बोलेंगे अभी लेफ्ट हैंड लिया मैडम आपने, राइट हैंड कोई भी ले सकते, ऐसा कोई नहीं है कि लेफ्ट हैंड पहले लो या राइट हैंड पहले लो, डजंट मैटर, खाली पर्पस अच्छा होना चाहिए, मतलब उस पे हमें क्या गेट करना है वो समझ में आना चाहिए. ओके, एंड डिपेंड्स ऑन यू, यू मर्ज इन डायरेक्टली एंड देन यू शुड बी गेट, बट सम स्टूडेंट्स इज नॉट गेटेड ना कि एक्स की वैल्यू क्या रहती है, फंक्शनल क्या वैल्यू रहती है, इसलिए डिटेल्स में बताना पड़ता है. ओके, सो फॉर x greater than 2, x greater than 2 means what, this is the x is the higher by 2, मतलब x क्या है 2 से बड़ा, मतलब 2 से आगे कोई भी वैल्यू होगी. ओके, सो वी राइट RHS, मतलब लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f of x, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f of x is equal to limit x tends to 2 plus what the function in second, 3x minus 2. Are you see? लिख रहा है सबको? Any doubt? Wow, good. Okay, so what do you write? Limit x tends to 2 plus 3x minus 2, and then we'll put 2 is x is replaced by 2. 3 into 2 6. 6 minus 2 how much? 4. This is the second equation, and then what do you say? लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f of x, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखी मैंने यहाँ पे, क्या लिमिट f of x x टेंस टू 2 प्लस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f of x. सो विल पुट कितना आया, पॉजिटिव का 6 और निगेटिव का कितना आया भाई 5. सो दोज आर इक्वल, नो, 6 and 5 दोज आर डिफरेंट. Okay, those values are different. Then what you saying? This function f of x is discontinuous function. F of x is discontinuous at x is equal to 2. क्या है? discontinuous function है, मतलब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड वैल्यू हमने निकाली, बट वो लिमिट की वैल्यू
एग्जिस्ट तो हो गई बट नॉट इक्वल, क्योंकि 6 आई और इसकी 5 आई, 5 वैल्यू आई. ओके, सो दोज आर unequal value, different value. So what do you say? This function is discontinuous function at x is equal to 2. मतलब आपको यहाँ से 3 या 2 मार्क्स एकदम इजीली गेटेड हो जाएंगे. कोई परेशानी नहीं, जस्ट दिमाग एकदम अच्छे से कुल रखना और अपना कंसंट्रेशन बढ़ा के रखना. मतलब क्या दिया है मैथ्स में, क्या रहता है क्वेश्चंस में, क्या दिया है और कैसे निकालना है, मतलब वही पे आंसर रहता है. थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसलिए ऑब्जर्वेशन इज गुड and listening skill also is good. So improve everyone. पहले सुनो फिर बाद में बोलो करो. मतलब बोलना तो नहीं है अपना, ये ओरली तो नहीं है, सब नोटबुक और पेपर वर्क ही अपना मैथ्स. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल as like very simple example is gives a very simple. अभी मैंने सेकंड में से एक बताया, आप कर सकते हो 3 4 तो ऐसे आपकी बुक्स में दिए हुए, तभी मैं एक 4 सम कर देती हूँ. फोर्थ वाला इट्स गिव्स डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f of x is gives mod 2x plus 3 at x is equal to minus 3 by 2. See everyone, discuss the continuity of the function mod 2x plus 3 at x is equal to कितना है minus 3 by 2. और आपको पता है फंक्शन में आपने पढ़ा है what mod x, you know everyone, एब्सोल्यूट वैल्यू इनसाइड थ्योरी. mod x में हमने पढ़ा था mod x is equal to x when x is positive, mod x is equal to minus x when x is negative, mod x is equal to 0 when x is equal to 0. This is nothing but what do we call absolute value function. Yes, victory sign पता है ना, victory sign, victory मतलब विजय भव, as like. So let's see how is the graph. कैसा रहता है इसका ग्राफ, एकदम सिंपल सा, मतलब ये दिमाग में होना चाहिए. मतलब देखा और हमने किया. कब आता है ये सब कमांड, डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस से आती है कमांड, ऐसा एक दिन में नहीं आता. सो mod x विक्टोरी साइन वी शेप में आता है, मतलब पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू 1 डाली तो कितना है 1, -1 डाली तो कितना आएगा -1 डाली तो +1 -1 बोथ, मतलब 1 के लिए 1, निगेटिव के लिए निगेटिव, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, निगेटिव के लिए निगेटिव. आर यू गेट इट? सो एज लाइक दिस कंस्ट्रक्शन, सो वी मेक एज लाइक दिस फंक्शन. अभी पहले हम फंक्शन लिख लेंगे. f of x क्या है, mod 2x plus 3n. तो हम कैसे लिखेंगे इसे, सी first 2x plus 3 and you know 2x plus 3 is equal to 0 and then we write 2x is equal to -3 and x is equal to -3 by 2. दिया है ना, आपको पता ही है 2x plus 3. So first we write in positive, then what do you define, x is greater than what, 3 by 2. समझ में आ गया, गुड. And second one minus 2x plus 3, then x less than 3 by 2. आई बात समझ में, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, मतलब नोटेशन खाली. सो विल डिफाइन RHS एंड LHS, मतलब क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 3 by 2 f of x प्लस एंड लिमिट x टेंस टू 3 by 2 माइनस, मतलब चार्ज लिया मैंने बट एक्चुअली वैल्यू क्या है -3 by 2, मतलब x इज ग्रेटर देन -3 by 2 एंड x इज लेस देन -3 by 2, मतलब यहाँ पे माइनस ही वैल्यू है. समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि कैसे निकाला मैंने, 2x plus 3 is equal to 0, then 2x is equal to -3 and x is
यहाँ पे 2 का मल्टीपल x था, तो x की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे हम, x का मल्टीपल 2 है तो 2 ही, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया, एंड देन वी शुड बी गेट आंसर x इक्वल टू -3/2 इट्स गिवन। सो व्हाट वी कैन डू, क्या करेंगे अभी यहाँ पे, सो वी राइट पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, सो वी डिफाइन पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -3/2 प्लस फंक्शन क्या है प्लस के लिए 2x + 3a। ओके, सो यहाँ सॉल्व किया तो x की वैल्यू पुट की तो कितना आया भाई, कितनी आई, मतलब अभी हम आप बोलेंगे मैडम यहाँ पर 3/2 डालेंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 डालेंगे, देख सकते हो आप 0 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट विल डिफाइन ना, वैल्यू तो कैलकुलेट की है यहाँ पे दी ना लिमिट, तो वही पुट करना है। ओके, सो 2 इज रिप्लेस बाय -3/2 + 3, सो 2 गेट कैंसिल, -3 + 3 कितना हुआ 0। सेम ईयर दिस साइड लिमिट x टेंड्स टू -3/2 माइनस कितना है, माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस है तो चार्ज है, और बट वैल्यू कितनी निगेटिव है, -2x + 3। सो वी पुट, क्या करेंगे अभी यहाँ पे x की वैल्यू -3/2 पुट किया, -2 × -3/2 + 3, सो माइनस एज इट इज, 2 गेट कैंसल, -3 + 3, और यहाँ पे माइनस का साइन पुट किया तो कितना है 3 - 3 कितना आया 0, मतलब आपने यहाँ पे डायरेक्टली किया तो भी चलेगा, या -2x -3, सो कितना आता वही आता 3 - 3, दैट मीनिंग इज 0। देन व्हाट इज है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देखा ना हमने ग्राफ भी ऐसा ही रहेगा ना, v मतलब मॉड x का, तो यहाँ तो कितना है 2x + 3, तो -3/2, मतलब किधर आएगा निगेटिव, इधर के फॉर्म में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, -3/2 है ना वैल्यू, निगेटिव है, तो आपको पता है यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या रहता है 1 2 3, मतलब +∞ रहता है, और यहाँ -∞ लेफ्ट हैंड साइड भी है, दिस इज द रियल नंबर है, बचपन में हमने पढ़ा था 5th स्टैंडर्ड में, पता होगा आपको। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल एंड देन लेटर वी विल स्टॉप माय लेक्चर। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम होगा सो प्लीज लेट मी नो कि टीचर आई कांट गेट इट, एंड देन एनी कंसेप्ट नहीं पता होगी, सो मैं गूगल मीट में तो लेती हूँ, हर वक्त लेती हूँ, गूगल मीट में बताती हूँ कि यहाँ कोई एनी प्रॉब्लम एनी डाउट्स, सो सेंड मी, आई विल सॉल्व यूर प्रॉब्लम्स। ओके, सो ऐसे आप कर सकते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट एक रैशनलाइजेशन का नहीं, एक एग्जांपल बता देती हूँ रैशनलाइजेशन का। ओके, वेरी सिंपल एग्जांपल and then stop my lectures. Okay, f of x is equal to, example डायरेक्टली मैंने शुरू कर दिया है, f of x is x³ - 8 and denominator it's having, wait, it's not clearly work out, f of x is given x³ - 8 and divide denominator x + 2 minus root 3x - 2. Okay, and x is not equal to 2 condition, and what is the given functional value is gives -24 when for x is equal to 2. Okay, so I will get it very simple, वही इंस्ट्रक्शन है, दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, सो फंक्शनल वैल्यू कितनी है यहाँ पे, f of 2 की कितनी दी है वैल्यू -24, and then you have what we have, limit x tends to 2, f of x is equal to f of 2. Okay, and then you have, this is the function f of x, limit x tends to 2 and f of x is x³ - 8 and denominator root x + 2 minus root 3x - 2 and functional value -24, और आपको पता है स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, x³ माइनस कितना 8 है, मतलब क्या है, अभी आप 8 को x माइनस, मतलब यहाँ पे मैंने x³ - 8 है ना,
सो आई विल राइट एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, मतलब उनके पावर सेम हो गए. ओके, बट इज डिनोमिनेटर इज नॉट अ स्टैंडर्ड. सो यू हैव रैशनलाइजेशन मेथड इन लिमिट. लिमिट में पढ़ा है रैशनलाइजेशन, मतलब इसे हमें स्टैंडर्ड करना है, डायरेक्ट मेथड में जाना है. ओके, सो व्हाट यू डन, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब and then denominator root x plus 2 minus root 3x minus 2 and rationalization मतलब क्या, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट. डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मतलब क्या, रूट एक्स प्लस 2 माइनस का क्या होगा, प्लस होगा. इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट फॉर्म. 3x माइनस 2 एंड रूट 2x प्लस 2 प्लस रूट 3x माइनस 2. ओके, एंड देन लेटर मतलब इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन फॉर्म, एकदम सिंपल सा है. एंड देन यू हैव व्हाट वी हैव, लिमिट x टेंड्स टू 2. सो न्यूमरेटर x क्यूब माइनस 2 क्यूब एंड इनटू x प्लस 2 प्लस रूट 3x माइनस 2 एंड देन डिनोमिनेटर रूट क्या हो गया, रूट a इंटू रूट b, ab. सो एट व्हाट यू राइट, x प्लस 2 एंड माइनस रूट 3x minus 2 plus root 3x minus 2. So what do you write, minus 3x minus 2 and right hand side minus 24 and then letter limit x tends to 2, limit x tends to 2, x cube minus 2 cube into root x plus 2 plus root 3x minus 2 is denominator and denominator is what, x minus 3x कितना हुआ, minus 2x and 2 minus minus plus मतलब 4. how to write 4 minus 2x and इसमें मैंने 2 कॉमन कर दिया तो कितना आया, 2 in bracket 2 minus x and then you have x cube minus 1 factor you know as like. So what can I do, limit x tends to 2, x minus मतलब x minus 2. okay, yeah, we write as like also minus 4x minus 2x plus 4. So what we write, minus 2 is common and then we write x minus 2. okay, and then you know x minus 2 is common, then what do you write, x square. ये पता ही होगा आपको, x क्यूब माइनस 8 मतलब 2 वैल्यू पुट की तो कितना है, 0 आ गया. सो 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 0 x स्क्वायर, x भी 0, यहाँ पे माइनस 8 सो 1. सो 1 इंटू 2 ओके, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 एंड देन 8. And then what you write, x square minus 2x plus 4. okay, x square minus 2x plus 4 and then मतलब यहाँ पे x ये कितना गया, x minus 2 का ब्रैकेट स्क्वायर, x square minus 4x plus 4 आता है. ओके, सो इसके फैक्टर नहीं आएंगे, इसके वैसे रहेंगे. एंड ये समझ में आ गया ना मैंने क्या बताया, दिस इज द थिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड. फैक्टर किए मैंने क्योंकि हमें x माइनस 2 क्या करना है, कैंसिल करना है. और यहाँ पे लिमिट x प्लस मतलब ये अलग हो जाएगा, लिमिट x रूट x प्लस 2 रूट 3x माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर में x माइनस 2 एंड माइनस 2 मतलब ये कैंसिल हो गया. तो कितना बचेगा, आर यू गेटिंग व्हाट आई से, रैशनलाइजेशन मतलब जो रूट में था उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया और मैंने क्रॉस वेरीफाई चेक किया, एक्स क्यूब माइनस 8 मतलब उसके फैक्टर निकाले तो कितने आए, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. एंड देन सेकेंड पार्ट एज इट इज एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है, एक्स माइनस 2. ओके, देन लेटर x माइनस 2 कैंसिल हो गया. अभी यहाँ पे मैंने 2 की वैल्यू पुट की तो कितना आया, 4 माइनस 4 0, तो यहाँ पे कितना बचा 4. ओके, एंड 4 अपॉन माइनस 2 एज इट इज एंड देन आफ्टर लिमिट x टेंड्स टू 2 इन रूट
x प्लस 2 प्लस रूट 3x माइनस 2। समझ में आ गया आपकी बात? और माइनस मतलब 2 से 4 को डिवाइड किया तो कितना आया 2, बट इज देयर माइनस एंड देन x इज रिप्लेस बाय 2 तो 4 का रूट कितना आया 2 एंड देन अगेन 3 into 2 6 minus 2 4 again 2, then what the answer? This is the 4 and this is the minus 8, then our answer is minus 24. Then what you get? Discontinuous. मतलब ये मैंने क्या क्यों बताया, इतना बहुत डिस्क्रिप्टिव बताया कि रैशनलाइजेशन क्या रहता है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं समझा होगा, सो प्लीज सेंड मी योर डाउट्स, मतलब जो कुछ भी डाउट होगा, टीचर आई कांट गेट इट, सो आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। ओके, थैंक यू एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। ओके, टेक केयर।